Up next, we dive into complexities of Pakistan's taxation system with Rashid Langrial, Chairman of the Federal Board of Revenue, and Miftah Ismail, former Finance Minister and Economic Policymaker. Let's give them a warm welcome as they unpack this critical issue. Hello. Thank you, beta. Bismillahirrahmanirrahim. شکریہ خواتین و حضرات جو آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. یہ میرے لیے بڑی اچھی ایک موقع ملا ہے مجھے آپ سب کے بہاف پہ, پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے بہاف پہ جناب راشد لنگریال صاحب سے بات کرنے کا, اور ان سے یہ جو کہ ایف بی آر کے چیئرمین ہیں, ہارورڈ کینیڈی اسکول آف پبلک پالیسی میں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, تو ان سے ذرا سمجھیں گے کہ ٹیکس ہوتا کیا ہے, کیوں ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو راشد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تھنک فیسٹ کو وقت دیا اور پاکستان کے ٹیکس پیئروں کو وقت دیا کہ آپ سے بات کر سکیں. اور پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ ٹیکس کتنا لیتے ہیں, وہ کتنا لیتے ہیں, ذرا بتائیے تو صحیح کتنا ٹیکس لیتے ہیں آپ سال کا؟ جی کتنا لیتے ہیں؟ جی کتنا آپ کا ٹارگیٹ تھا اس سال؟ اس سال آپ کا 9.23 ٹریلین کا ٹارگیٹ ہے, اور اس میں آپ کا انکم ٹیکس کوئی 5.4 ٹریلین ہے, 4.9 آپ کا سیلز ٹیکس کا ہے, رفلی 1.5 کسٹمز ڈیوٹی کا ہے جو ٹارگیٹس ہے, اور دین دیر سم ایف ای ڈی. تو یہ ہے ٹوٹل, لیکن یہ رفلی 40% نامنل انکریز ہے اوور دا پریویس ایئر. 13 ہے یا 9 ہے آپ نے کہا؟ جی 13.2. 13.2 بلین. تو 13,200 ارب روپیہ ٹیکس لیں گے آپ ہم لوگوں سے, جو آپ کا ٹارگیٹ ہے, جو پچھلے سال سے 40% زیادہ ہے. That's correct. تو یہاں پہ یہ ہر آدمی بیٹھا ہوا یہ تصور کر سکتا ہے کہ جو بھی پچھلے سال اس نے ٹیکس دیا تھا اس سے 40% زیادہ دے. نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہم جو ٹیکس نہیں لے رہے, میں وہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. بتائیے. سو اس وقت جو ہمارا ٹیکس گیپ ہے, جسے ہم جو ٹیکس لگے ہوئے آلریڈی, جو ریٹس ہیں ان کو اگر چینج نہ کیا جائے اور کسی قسم کا کوئی اور ٹیکس میں چینج نہ ہو, تو ہمارا کوئی پچھلے سال کے نمبرز کے اوپر 3.4 ٹریلین کا سیلز ٹیکس میں گیپ ہے. اسی طرح کوئی 2 ٹریلین کا انکم ٹیکس کے میں گیپ ہے. تو یہ میجر گیپس ہے. کوئی 600 بلین کا کسٹمز والی سائڈ پہ گیپ ہے. اگر اس سارے کو آپ دیکھیں تو جو ٹیکس کا اس دفعہ ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے وہ پالیسی میجرز کا ایک پارٹ ہے, آف کورس جو جون میں لگے, اور اس کے علاوہ ایک بڑا پارٹ اس بات کا ہے کہ جو ٹیکس ہم نہیں دے پا رہے. میں مثلاً آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, انکم ٹیکس کی ہم بات کر لیتے جو زیادہ سمجھ آتا ہے, آسانی سے سمجھ آتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور زیادہ لوگ نہیں دیتے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ 2 لوگ بس کو دھکا لگا رہے ہیں, میں یہ ایڈ بھی دیکھتا رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہاں بہت تھوڑے لوگوں کا ہی انکم ٹیکس بنتا ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے ہاں جو لوگ ہیں زیادہ تر لوگوں کی ٹیکسیبل انکم ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل جو ایون کرنٹ ریٹ ہے جو لو ہے 50,000 روپیہ پر مہینہ, اس کے اوپر 60% لوگوں کی تو انکم ہی اس سے کم ہے, 60% ہاؤس ہولڈ کی. تو اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو ہمارے کوئی 6.7 ملین لوگ ہیں جو ورک فورس کا حصہ ہے. دس انکلوڈ سی اوز اینڈ اونرز اینڈ ڈائریکٹرز اینڈ ایوری بڈی. اس 6.7 ملین کا جو ٹاپ 1% ہے وہ 6,70,000 لوگ بنتے ہیں. ان 6,70,000 کی جو انکم ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 1.7 ٹریلین ہے کرنٹ ٹیکس ریٹ کے اوپر. اس 1.7 ٹریلین میں سے یہ جو 6,70,000 لوگ ہیں جو ٹاپ 1% ہے, جی نہیں 6,70,000 میں نے آپ کو بتایا, تو نہیں 1% بنتا ہے آف 67 ملین. 67 ملین آپ کی ورک فورس پارٹیسپیشن ہے ٹوٹل. آپ کے علم یہ ہے آپ کے ٹوٹل 243 ہے, نہیں 67 ملین. تو 67 ملین میں سے یہ جو ٹاپ 1% ہے یہ 6,70,000 لوگ ہیں. ان کی جو ٹیکس لائبلٹی کرنٹ ٹیکس, ان کی ایوریج انکم جو ٹاپ 1% کی وہ 13.2 ملین ہے. ظاہر اس میں بہت زیادہ انکم والے لوگ بھی شامل ہیں اور کچھ کم والے بھی شامل ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان کی 1.7 ٹریلین کی ٹیکس لائبلٹی ہے. جو یہ اپنی بریکٹ میں بک کر رہے ہیں ٹیکس, جو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, جب ہم اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں
تو یہ رفلی 500 بلین اس میں سے دے رہے ہیں, 499 ٹو بی ایگزیکٹ ان دا لاسٹ فائنینشیل ایئر, جس کا مطلب ہے کہ 1.2 ٹریلین کا گیپ صرف ٹاپ 1% کا ہے. آپ کا جو ٹوٹل انکم ٹیکس گیپ ہے وہ 2 ٹریلین کا ہے, اور جو 95% آف دا ہاؤس ہولڈس ہے, جو نیچے والے 95% آف دا ہاؤس ہولڈ ہے, ان کا ٹوٹل ٹیکس گیپ 140 بلین سے کم ہے. یو جسٹ لک ایٹ دس 140 بلین, کیونکہ ان کی انکم اتنی کم ہے اور ٹیکس ریٹ بھی ظاہر آپ کو پتا ہے کیسکیڈ کرتا ہے. تو یہ جو 140 بلین ہے, ہم وہ جو بس میں زیادہ لوگوں کو چڑھانے کی کوشش کریں, یہ 140 بلین کے لیے چڑھانے کی کوشش کریں. جو بس کو 2 بندے دھکا لگا رہے ہیں, اصل میں وہی صحیح دھکا نہیں لگا رہے. وہ 1.2 ٹریلین کا آپ کا صرف ٹاپ 1% میں گیا تھا. میری جو آپ دیکھیں, ایک اور طرح اس کو دیکھیں, آپ کے رفلی 5% ہاؤس ہولڈ کو اگر آپ لے لیں تو اس میں جو گیپ ہے وہ 1.5 ٹریلین کا ہے, اور ٹوٹل 2 ٹریلین کا, جس میں صرف کارپوریٹ ٹیکس سائڈ پہ. ایک سیکنڈ سر, جسٹ ایک سیکنڈ میں ایکسپلین کر لوں. آپ ایک اور طرح دیکھیں, پاکستان میں ٹوٹل 4 ملین گھرانے ایسے ہیں جن کا ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے. آپ ایسا ملک جس میں اتنی گرمی پڑتی ہے, اتنی شدید گرمی, اگر کسی کے پاس 4 پیسے ہوں گے تو سب سے پہلے تو اپنا ایئر کنڈیشنر تو گھر میں لگوائے گا نا. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایئر کنڈیشنر لگا لیتے ہیں, استعمال نہیں کرتے, اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ جائے, سسرال والے آ جائیں تو اس وقت استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بندہ جس کے ان کے پاس ٹیکسیبل انکم ہے ہی نہیں, یہ رفلی وہی 5 to 6% لوگ بنتے ہیں, تو یہ 5 to 6% درست ٹیکس نہیں دے رہے. سر ایک منٹ رک جائیں, اب مجھے بتائیں ٹیکس گیپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹیکس گیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر انکم ٹیکس سائڈ پہ دیکھیں, انکم ٹیکس کیا بتائیں ابھی سے جی انکم ٹیکس کا, تو آپ کی جو بھی آپ کی انکم ہے اور جو آپ کا ٹیکس ریٹ ہے اس کو جب اپلائی کرتے ہیں اکراس ہاؤس ہولڈ, ہمارے پاس اب اچھا ہاؤس ہولڈ کا سرویز موجود ہے. سو ہاؤس ہولڈ کے آپ کو مین ایکسپینڈیچر کے سرویز موجود ہیں جو پی بی ایس کی کیلکولیٹڈ ہے, وہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے. جب ہم اس کے اوپر مین ہاؤس ہولڈ انکم کے ساتھ آپ کو کرتے ہیں, ٹیکس ریٹ کو کرتے ہیں, تو آپ کی ٹوٹل ٹیکس لائبلٹی نکلتی ہے. تو اس میں سے جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, جو نہیں آ رہے وہ گیپ ہے. سو مطلب انڈر رپورٹنگ آف انکم ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پرابلم نن فائلنگ اتنا بڑا نہیں ہے, انڈر فائلنگ زیادہ بڑا پرابلم ہے. Under تو کر کیا رہے ہیں, under reporting of income. جی انڈر رپورٹنگ آف انکم ہیوج پرابلم ہے. انڈر سر رپورٹنگ یہ اس میں صرف ٹیکس پیئر ہی گلٹی ہے؟ جی جو ٹیکس دینے والا ہے وہی گلٹی ہے یا عملے بھی اس میں؟ نہیں, دونوں سائڈ پہ, ٹیکس لینے والا بھی, ٹیکس دینے والا بھی. ٹیکس لینے والی سائڈ پہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے, اس کے اندر بھی بہت ایشوز ہیں. اس میں کیپیبلٹی کی, کیپیسٹی کے بھی ایشو ہیں. اس کے اندر اس کے علاوہ ایشوز بھی موجود ہیں جو آپ سب کے نالج میں ہیں. لیکن کیا ہے, سسٹم کا ڈیزائن 5% کو ہیلپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ جو 5% ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہی لوگ وہ ہیں, یہ جو ٹیکس نہیں دے رہے 1.2 ٹریلین, یہی روز آپ کو ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے جس سے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی لوگ ہیں جو پالیسی میکنگ کے وقت جون میں آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں, مئی جون میں جتنے لوگ آپ کو ملنے آتے ہوں گے اتنے پورا سال اسلام آباد میں نہیں آتے. تو وہ آپ کو جو لوگ جولائی سے اپریل تک اسلام آباد میں نظر نہیں آتے, وہ یکدم مئی جون میں ان کے اسلام آباد میں تمام سوشل تعلقات ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ پالیسی سائڈ پہ بھی کرتے ہیں, انٹروین کرتے ہیں. ہمارے ای ایف ایس کی مثلا ایک ای ایف ایس کی پالیسی بنی ہوئی ہے, ایکسپورٹ کی فیسیلیٹیشن, بہت اچھی پالیسی ہے. لیکن کیا کیا انہوں نے کہا جی آپ کوئی چیز امپورٹ کر لیں, ہم آپ سے ٹیکسز نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا, وچ از فائن, وچ از پرفیکٹ. لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 5 سال رکھا. اب 5 سال تو وہ کون سا ایسا مینوفیکچرر ہے جسے اپنے را مٹیریل منگا کے 5 سال بعد پروڈکشن کرنی پڑتی ہے؟ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو وہ تو انوینٹری مینجمنٹ ہی نہیں کر رہا, اور ہی شوڈ بی آؤٹ آف دا بزنس. تو یہ وہ لیپسز ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں. لیکن آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ کیا ہم ایف بی آر کی آرگنائزیشن کی کرنٹ کیپیبلٹی کے ساتھ اس گیپ کو فل کر لیں؟ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ کو پچھلے 4-5 مہینے میں ہم نے ایک میجر ٹرانسفارمیشن پلان ایف بی آر کی اپنی کیپیبلٹی بہتر کرنے کے لیے بنایا ہے. وہ آگے چلتے ہیں تو ہم اس پہ بات کریں گے. جی سر, یہ جو 13,000 کتنے 500 ارب روپے آپ لیں گے ہم سے اس ملک میں, جس میں ٹوٹل انکم جو ہے وہ 1,08,000 ارب روپیہ ہوگی اس سال, تو آپ تقریباً 12.5% ہماری انکم کا لے لیں گے. سوال پورا سن لیجیے. جی اجازت ہو تو. جی پلیز. سو 12,500
12.5% हमारी इनकम का ले लेंगे, और इनकम से मुराद ये है कि जो फकीर को भीख मिलती है उसके भी 12.5%, जो ज़कात दी जाती है उसके भी 12.5%, गरीब अमीर बूढ़ा मर्द औरत जवान सब के 12.5% जो है वसाइल आप ले लेते हैं FBR। तो ये टैक्स लेते हैं आप, तो ये इसका हमको क्या इफादियत होती है, हमको मिलता क्या है इसके सामने? अच्छा देखिए, ये एक ना हमारे एक और डिबेट जो होती है वो ये है कि क्या हम टैक्स ज्यादा लेते हैं, क्या पाकिस्तान इज एन ओवर टैक्स कंट्री। अब दो तरह इसको देखा जा सकता है। एक है टैक्स रेट्स, तो बहुत जगहों पे टैक्स रेट गलत है, उनको ठीक करने की जरूरत है। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स रेट इज ऑन हायर साइड, सैलरीड क्लासेस पे जो टैक्स रेट है वो इज ऑन हायर साइड। इसी तरह आपका GST भी प्रोबेबली स्लाइटली अमेंड हो सकता है। इसी तरह आपके इंपोर्ट स्टेज पे टैक्सेस जितने हम लेते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए, वो कहीं और लेने चाहिए, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन क्या इन टोटल हम टैक्स बाकी कंपेरेबल मुल्कों से ज्यादा लेते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा टैक्स GDP रेशियो रफली 9% है, हमारा एक्सपेंडिचर जो GDP रेशियो रफली 19% है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च करती है? इज पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्पेंड्स टू मच कंपेयर टू अदर कंट्रीज? नो। आप सारे कंपेरेबल कंट्री से देख लें, आपका एक्सपेंडिचर जो GDP रेशियो या बराबर है या कम है। इंडिया में रफली वो 24% है, हमारा 19% है, बांग्लादेश बाकी तमाम मुल्कों में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी आर एबल टू कलेक्ट टू लिटिल, दैट इज द इशू। तो गैप जो सारा आ रहा है वो इससे आ रहा है। जब आप कहते हैं 12%, इस साल जो हमारा एस्टिमेट है GDP का वो 122 ट्रिलियन का है, आपके इल्म में है। और 122 ट्रिलियन के अलावा आपको पता है कि GDP के अलावा भी कुछ स्पेंडेबल इनकम है जो पाकिस्तान में आती है, विच इज रफली $30 बिलियन, इस दफा शायद उससे ज्यादा हो, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो जब आप स्पेंडिंग साइड पे देते हैं तो नॉट ओनली द GDP प्लस ऑल द नेट रेमिटेंसेस दैट यू गेट, दैट इज पार्ट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग यू मेक। मैं इसी की आप पर्टिकुलरली आपने बात की कि किस किससे लेते हैं। इंडिया में जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो सूबों के पास है, हमारे यहाँ ये फेडरेशन के पास है। इंडिया में सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इज 6.5% ऑफ GDP। हमारे यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस निस्बतन एज ए प्रोपोर्शन कम है, तो हमारे यहाँ ये रफली 5.5 और 6% ऑफ GDP के दरमियान होना चाहिए अगर हम पूरा कलेक्ट। लेकिन पिछले साल जो हमने कलेक्ट किया वो 3% है। सो आपका सेल्स टैक्स अलोन का जो गैप है वो 3.4 ट्रिलियन। जब सर कहते हैं कि, और सर क्योंकि हैज वर्कड एज फाइनेंस मिनिस्टर, ही नोज इनसाइड स्टोरी एज वेल, कि जी वो क्या हम हर एक से ले रहे हैं ये 12% या हर एक से नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके अभी तक बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे फूड आइटम्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, आपके रा फूड के जितने हैं कैटेगरीज वो सारी एग्जेम्प्टेड हैं। इसी तरह आपके बहुत सारे और एरियाज हैं जिसे और ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ है, बाकी जगहों पे भी फूड आइटम्स और इस तरह की चीजों को टैक्स नहीं किया। गुजारिश करूँ, जवाब बड़ा अच्छा है लेकिन वो जवाब वो नहीं है जो सवाल था। सवाल सर ये पूछा था कि ये जो हम आपको 13,000 अरब रुपए देते हैं, या जो आप 18,800 रुपए वफाक में खर्च करते हैं, या सूबों में 12,000 रुपए खर्च करते हैं, उससे अवाम पाकिस्तानी अवाम को क्या मिलता है? अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि आप थोड़ा सा ऐसे एपॉलिटिकल रखेंगे पाकिस्तानी अवाम को। एक सेकंड सर, मतलब पीपल वांट टू नो कि व्हाट सर्विसेज डू वी गेट। सर देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, ये डिबेट ये है कि आप जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, से 57% उसमें से सूबों को जाता है, तो वो हेल्थ में, एजुकेशन में उसे बेहतर खर्च करना चाहिए। तो इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, बेहतर खर्चा होना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरह प्रोविंसेस को टैक्सेस थोड़े से बेहतर तरीके से कलेक्ट करने चाहिए। फेडरेशन का भी गैप है, उसे भी बेहतर तरीके से करने चाहिए। इस पे मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। क्या हम स्कूल एजुकेशन में जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं वो काफी है? पहला सवाल ये है। जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है आपका प्रोविंशियल साइड पे, तो वो काफी नहीं है क्या? जी कर लेंगे। अच्छा, तो क्या जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं पब्लिक स्कूल एजुकेशन में, वो पैसे इवेंचुअली बच्चे के एजुकेशनल आउटकम में ट्रांसलेट हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे। ये दोनों सवालों का यही जवाब है जो आप सुनना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही जवाब है। लेकिन क्या है उसकी वजह? आपका स्कूल सिस्टम के डिजाइन के, जिस तरह टैक्सेशन सिस्टम के डिजाइन के इशू हैं, इसी तरह स्कूल के डिलीवरी सिस्टम। सो हमारे स्कूल इस वक्त जो बने हुए हैं, पब्लिक स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं, वो इस डिजाइन पे नहीं है कि बच्चों की एजुकेशन बेहतर होगी, वो इस डिजाइन पे है कि बच्चों के नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बेहतर होंगे। अब इन दोनों में एक बुनियादी
बुनियादी फर्क समझ लीजिए. से पाकिस्तान में इस वक्त एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि ये फ्रांस में 1967 में अचीव हुआ था. पाकिस्तान हैज ऑलरेडी अचीव द सेम एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो फ्रांस ने 1967 में अचीव किया था. तो असूलन तो ये होना चाहिए कि अगर ये वाला हमने लेवल अचीव कर लिया तो फ्रांस ऑफ पाकिस्तान शुड लुक लाइक फ्रांस ऑफ 1967, which it doesn't. तो क्या वजह है? एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन हैज फेल्ड. एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन क्यों फेल हुआ है? क्योंकि आप नंबर ऑफ इयर्स तो कर रहे हैं, एजुकेशनल आउटकम्स नहीं. हमारे यहाँ ये एक बड़ी लंबी स्टडी 2002 से चल रही है. आसम खाजा वगैरह, जिष्णु दास वगैरह ने शुरू की थी. एक लीव्स का प्रोजेक्ट है. दोज ऑफ यू हैव वर्क ऑन एजुकेशन बीट्स, दे नो दैट. उसमें हमने ये देखा कि जो प्राइवेट स्कूल, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं पंजाब में वर्सेस जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उसमें टीचर्स आर अंडरपेड इन प्राइवेट स्कूल्स. Teachers are under-trained compared to public schools. Teachers in the private schools have less education compared to public schools. लेकिन educational outcomes are 3 times more. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि that money is being allocated. मैं आपको मिसाल देता हूँ. I worked at DCO खानेवाल. हमारा वहां पे एक वो जिससे आप देखते हैं ना मुस्लिम जगहों पे स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्मल सिस्टम से नहीं, तो मियां चन्नू एक पब्लिक स्कूल है. तो मैंने उनसे जब चेक किया और उधर दाखिलों की बहुत सफारशें होती थी कि हमारे बच्चे को दाखिल करा दे, हमारे बच्चे को दाखिल. तो मैंने चेक किया कि उस जमाने की बात 2011 की कि आपकी एवरेज पर चाइल्ड स्पेंडिंग क्या है. तो उनकी एवरेज पर चाइल्ड स्पेंडिंग 1000 रुपया थी उस वक्त मियां चन्नू पब्लिक स्कूल की. और जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के, जिसमें हाई स्कूल वगैरह शामिल थे, उनकी एवरेज पर चाइल्ड कास्ट 1050 रुपए थी. इसका मतलब क्या हुआ कि एलोकेशन हो रही है, लेजिस्लेचर अपना फंक्शन कर रही है, वो एलोकेशन कर रही है, लेकिन वो जो पाइप है जिसके जरिए दैट मनी हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू वैल्यू एंड इनटू एजुकेशनल आउटकम्स, दैट पाइप हैज मेनी होल्स थ्रू व्हिच इट गोस. मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, उसके नतीजे में जो सर्विसेज हमको मिलनी चाहिए वो सही नहीं मिल रही. सर्विस डिलीवरी बिल्कुल, ये मैं इस तरह ये कहूंगा, ना हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, ना जो दे रहे हैं उसके नतीजे में जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो पूरी मिल रही. इस बात में तो कोई देखें, इसमें कोई अब वो ना एकेडमिक साइड पे इख्तलाफ है ना दूसरी साइड. ये जो सारी आपकी डिबेट इस वक्त होती है वो यही होती है ना कि आप अपने सिस्टम्स को कैसे बेहतर जी 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 जी. सर वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, इतने मशहूर ज्यादा हैं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं थे, आर्थर लेफर. आपने जरूर नाम सुना होगा उसका. और उनकी एक लेफर कर्व थी, उसके बारे में जरा सा कुछ बताएंगे तो फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा. जी फरमाइए. सो बेसिकली मिफ्ता साहब ये कह रहे हैं कि इब्न खल्दून ने आज से कुछ 400-500 साल पहले ये कहा कि जब आप टैक्सेशन का रेट बहुत बढ़ा देते हैं तो आपका टोटल टैक्स कम हो जाता है, क्योंकि यू गो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेफर कर्व, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. तो अगर सवाल ये है कि लेफर कर्व के हम राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे, तो हम लेफ्ट साइड पे हैं करंटली. क्यों हुआ ऐसा? हम जिन लोगों से लेफर कर्व के राइट साइड पे रहते हुए हमें टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए. तो नतीजा ये हुआ कि जहां जहां जिस पार्ट से, जैसे अभी सैलरीड क्लास की हमने बात की है, उससे हमने ज्यादा लेना शुरू कर दिया. अच्छा, अब ये दुरुस्त पॉलिसी ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या किसी गवर्नमेंट के पास या किसी, जैसे मिफ्ता साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, क्या इनके पास ये ऑप्शन ये थी कि ये लेफर कर्व के यकदम राइट पे चले जाते? यकदम आप नहीं जा सकते. देयर इज अ ट्रांजिशन टाइम, लेकिन हमें जाना राइट साइड पे चाहिए. ये आप दुरुस्त कह रहे हैं. या आपके ज़हन में कोई और सवाल था? नहीं, जिसको आप राइट कह रहे हैं मैं उसको लेफ्ट कर रहा था, लेकिन मतलब मैं यहाँ से जीरो से शुरू कर रहा था. तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मिसाल के तौर पर जो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा था कि हमारे पास 3 टैक्स रेट्स हैं. जो सैलरी क्लास के ऊपर जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो 38.5% है. हम 50,000 रुपए से शुरू करते हैं कि किसी की 50,000 तनख्वाह, उसको भी शुरू करते हैं. और ये 4 साल पहले मैं वजीर खजाना था जब शुरू हुआ. अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो 70 हो जाना चाहिए था, लेकिन 50 ही पे कर रहे हैं हम. और बहुत ज़्यादा लड़ाई मैंने भी की थी, इन्होंने भी की होगी IMF से इस पे. और 38.5% है, लेकिन हमारा जो बिजनेस इंडिविजुअल है उसके ऊपर टैक्स रेट से हाईएस्ट 49.5%. यानी कि जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं अस्पतालों में, उनको हम कह रहे हैं कि 49.5% आप अपना टैक्स दे दें. और मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा कंप्लाई होता होगा. नहीं होता. जब मैं पहली मरतबा वजीर ख़जाना बनने का मुझे इत्तफाक हुआ या मौका मिला, तो
हमने कोशिश की थी कि 15% टैक्स करें, और उसकी वजह ये थी कि, और आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज, आई वॉज थिंकिंग ऑफ कि जो जोड़िया बाजार कराची में या अकबरी मंडी में या दीगर जगहों पे जो काम बिजनेसमैन करते हैं वो 2-3 करोड़ रुपए कमाते हैं, अगर आप उनसे कहें कि 50% अपनी इनकम आप डिक्लेयर करके हमको दे दें तो ज़रा सा मुश्किल है. तो इज देयर एनी प्लान इन द फ्यूचर वेयर यू विल रिड्यूस दीज टैक्स रेट्स? देखिए, इसके ना ये वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम है. पहली बात ये है कि गवर्नमेंट की साइड पे, एफबीआई में डेफिनेटली, बट गवर्नमेंट एज अ होल इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस. और इस पे आपने शायद कुछ कैबिनेट मीटिंग्स के हवाले से सुना भी होगा कि गवर्नमेंट खुद भी कन्विंस है कि कुछ टैक्स रेट्स ऐसे हैं जिन्हें कम होना चाहिए. इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. इशू क्या है कि क्या आपके पास इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये ऑप्शन थी जब आप बजट ला रहे थे? क्या वो ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है? नहीं है. जो बात की ना कंप्लायंस की, जब तक हम कंप्लायंस को, जोड़िया बाजार की कंप्लायंस को, सूतर मंडी की कंप्लायंस को बेहतर नहीं करते तो ये ऑप्शन क्रिएट नहीं होगी. ये स्पेस तब क्रिएट होगी जब हम सेल्स टैक्स साइड पे भी और इनकम टैक्स साइड पे भी उन लोगों को जहां पे कंप्लायंस की इशू है उनको नहीं चले. अभी आपने शायद देखा होगा कि एक नई लेजिस्लेटिव प्रपोजल हम लेके गए हैं हाउस में. सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने उसे अप्रूव कर दिया है. अब ये नेशनल असेंबली में जा रही है. उसमें हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी पैसे कमाता है वो जब खर्च करता है तो खर्च नहीं कर सकेगा या मुश्किल से कर सकेगा अगर उसने अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं किया. से फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ क्या लोग जब पैसे कमाते हैं तो किधर लेके जाते हैं? दे बाय व्हीकल्स, दे बाय प्लॉट्स, दे बाय प्रॉपर्टी. वो पैसे हवा में तो नहीं रहते ना. दे डू समथिंग विद दिस. वो या इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो अभी हम जो लेजिस्लेशन लेके गए हैं वो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल नहीं है, और एलिजिबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि अगर आपने पिछली टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम शो नहीं की तो आप जाके डीएचए के दफ्तर में या किसी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में प्लाट नहीं खरीद सकेंगे अनटिल आपकी लास्ट टैक्स रिटर्न ये शो करती है दैट यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज. उसकी इंप्लीमेंटेशन साइड पे और बहुत सी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाता. बट बिग थिंग इज कि अगर आपने अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं किया तो आपके स्पेंड करने के ऑप्शंस कम हो जाएंगी या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सर, दो मैं सवाल पूछ के फिर मैं पब्लिक के लिए ये बात कर दूंगा क्योंकि आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वांट टू आस्क राशिद साहब क्वेश्चंस. तो एक सवाल तो सर ये कि आपने जो कहा कि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास टैक्स कम करने के जब तक कंप्लायंस नहीं हो. चिकन एंड एग प्रॉब्लम है. आप कह रहे हैं 50%, 49.5% टैक्स दे दें. वो कह रहे हैं कि पहले टैक्स रेट्स कम करो फिर देंगे. तो ये एक मसला है. तो सर कोई अखराजात कम करने की कोई पॉसिबिलिटी है? मिसाल के तौर पर इस बार जबकि आपका इन्फ्लेशन रेट इस साल 12% होगा शायद, तो एक्सपेक्टेड तो था, आपने 22% जारी अखराजात बढ़ाए और आपने 64% पीएचडीपी के एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए. पिछले साल 700 अरब थे, इस बार 1150 अरब रुपए रखे हुए हैं. तो ये ज़रूरी है कि हम पीएचडीपी पे ये खर्च करें और इंटरप्रोविंशियल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, और ज़रूरी है कि 22% हम जारी अखराजात बढ़ाएं. अगर हम आम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अपने कमर कस लें तो शायद हुकूमत में कोई गुंजाइश है सर खर्च? ये बहुत वैलिड सवाल है. जब आप किसी से कहते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम लेफर कर्व के उस साइड पे हैं मगर मजबूरी से हैं, तो सिटीजन हैव अ राइट टू आस्क द गवर्नमेंट कि भाई फिर आप क्या कर रहे हैं, देन व्हाट आर यू डूइंग. मेरा ख्याल है कि एक बहुत मेजर काम फेडरल गवर्नमेंट में हो रहा है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ प्रोविंशियल साइड. फेडरल गवर्नमेंट में हो रहा है. देयर इज दिस राइट साइजिंग कमेटी दैट इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. उसमें 2 मिनिस्ट्रीज और मल्टीपल अटैच डिपार्टमेंट्स बंद करने का फैसला हो चुका है. सो एक मैं उनकी कुछ शुरू की मीटिंग्स में खुद भी शरीक रहा हूं व्हेन आई वाज सेक्रेटरी पावर. एक ऑर्गेनाइजेशन से ये 3 सवाल पूछे जा रहे हैं. पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आप जो काम करते हैं ये पब्लिक सेक्टर में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए. So this is the first question that is asked from each organization. So why not this should be left to the private sector. दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आपके काम का कुछ ऐसा हिस्सा है जो पब्लिक सेक्टर में ही हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसमें कोई पब्लिक गुड इन्वॉल्व है या कोई नेचुरल मोनोपोली की ऐसी फॉर्म इन्वॉल्व है जिसे आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं लेके जा सकते, और उसके ऊपर पब्लिक फाइनेंस में सफिशिएंट क्राइटेरिया मौजूद हैं जो ये तय करते हैं कि दिस वर्क शुड बिलोंग टू पब्लिक सेक्टर और नॉट, उसे वो उस कमेटी के सामने अगर जस्टिफाई ना कर सके तो वो अदारा बंद हो जाता है या उसका वो हिस्सा बंद हो जाता है. और ये इस वक्त कंटिन्यूस एक्सरसाइज है. फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक होल्ड्स
मीटिंग एवरी वीक और बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसमें काम हो रहा है. उसमें हमारे एक दो बड़े काबल लेजिस्लेटर हैं, बिलाल कियानी साहब हैं, वो उसमें हैं, एक दो सलमान साहब हैं, सलमान अहमद साहब मैकेंजी में रहे, वो भी उसमें शामिल हैं, और एंड ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज आर पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज. और बिल्कुल बारीकी से वो काम हो रहा है. तो अगर कोई ये इस बुनियाद पे नहीं कि हमारा अदारा इतनी देर से है और वो जो यूजुअल नरेटिव उसको कोई नहीं मान रहा उस कमेटी में. तो कोई एक सेकंड सर, ये सर मैं थोड़ा सा खत्म कर लूं सर. दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ये पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता भी है, फर्ज किया ये दिस गुड शुड बी डिलीवर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर और शुड बी फाइनेंस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, इस तरह तक जस्टिफाई हो भी जाए, तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि इसके लिए क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ये फार्म होना जरूरी है या नहीं है. तो ये भी साबित करना पड़ेगा कि इसी फार्म में होगा, वरना वो कमेटी ये कह रही है कि ठीक है जी हम पब्लिकली इसे फाइनेंस तो करेंगे लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, हम इसे डिलीवरी मोड इसका बदल देंगे. थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि अगर ये पब्लिक सेक्टर का भी है और इसका डिलीवरी मोड भी नहीं बदला जा सकता, तो क्या ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं करना है, या दिस कुड बी डन एट सम अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो जो हमारा फेडरलिज्म का तस्वर है उसके अंदर क्या ये प्रोविंशियल लेवल पे होना चाहिए, लोकल लेवल पे होना चाहिए. देयर इज वन एग्जांपल, PWD, एक आपने नाम सुना होगा, बहुत देर से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दैट हैज ऑलरेडी बीन स्लैश्ड. इसी तरह बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको स्लैश किया. आपको याद होगा जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, PWD के आपके पास बहुत इश्यूज आते थे, लेकिन ये बहुत बारीकी का काम है. ये इस तरह नहीं है कि हम, लेकिन ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो मैंने आपसे शेयर किए, इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरी तनदेही से. ऐसा भी हुआ कि एक दो मिनिस्टर्स आए और उनके सेक्रेटरीज ने बड़ा फोर्सफुली अपना केस पेश किया, एंड दिस कैबिनेट कमेटी जो राइट साइजिंग कमेटी, उन्होंने कुछ चीजों से एग्री कर लिया, लेकिन जब कैबिनेट में गया तो कैबिनेट में इन लार्जर फोरम उनसे भी नहीं एग्री किया गया और उन्हें फैसला किया गया कि नहीं, भले ही इस कमेटी ने कुछ 5% 10% उन्हें गुंजाइश दी है, उसको भी खत्म कर दे. बिल्कुल रिसेंटली ये हुआ है. सो दिस इज गोइंग ऑन माशाल्लाह सर. लेकिन कोई नफरी कम हुई है सर? बिल्कुल बिल्कुल. उसमें आपकी जो पोस्टें हैं वो खत्म होंगी, बहुत सारी पोस्टें कुछ खत्म हुई भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ ना पब्लिक सेक्टर में कुछ आपकी लाइबिलिटीज है. दो तरह की लाइबिलिटीज है. एक वो जो आप ऑलरेडी लोगों को एम्प्लॉय कर चुके हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके आगे कोर्ट्स के और लीगल मैटर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी आपने भर्ती करना है. सो जब ये खत्म होता है तो पहली बात तो ये है कि वो बहुत सारी जो फ्यूचर लाइबिलिटी क्रिएट होनी थी वो खत्म हो जाती है. और दूसरा इनका, क्योंकि कहीं और आप डिस्पोजल करते हैं या उसको कोई मेथड बनाते हैं तो उससे एट्रिशन आती है, और जब एट्रिशन आती है तो इवेंचुअली ये काम हो जाए. सो इस अगले फाइनेंशियल ईयर में, मुझे आप नंबर्स याद नहीं है, मेरा ख्याल है आज फाइनेंस सेक्रेटरी किसी एक सेशन में है, अगर उनसे पूछा जाए तो ही माइट हैव इवन रिमेंबर द नंबर्स, क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज नॉट बीइंग लेड बाय FPR, इट इज बीइंग लेड बाय फाइनेंस. सर जो मुझे, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये थोड़ा सा इस पे बात करके अगले क्वेश्चन पे चले जाऊं, कि जो मैंने सुना है कि 1.5 लाख पोस्टें खत्म की गई हैं, लेकिन वो सारी की सारी वेकेंट पोस्ट थी, किसी पे आसामी नहीं था. मगर चलो अगले साल की हायरिंग तो कम हो सकती है. सर जो अब अगला, मैं आखिरी सवाल पूछ लूँ सर, ये जो आपने एक बात भी की थी कि वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सा लेवल होना चाहिए, प्रोविंशियल होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए. तो आप लोग जो टैक्स जमा करते हैं, एंड पीपल शुड नो दिस, कि जो आप वफाक में टैक्स देते हैं उसका तकरीबन 57.5% पैसे जो हैं वो सूबों को चले जाते हैं. तो सूबे भी आपके पैसों से ही फंड होते हैं. इनफैक्ट 60% से ज्यादा चले जाते हैं सूबों को पैसे, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स. सो डू यू थिंक के गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बजट एंड गिवन द डेफिसिट, इस साल 9,000 अरब रुपए का डेफिसिट का तखमीना है, अबाउट 8% ऑफ GDP, थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है. तो डू यू थिंक कि इस NFC अवार्ड को चेंज किए बगैर और बहुत ज्यादा टैक्स लगाए बगैर हम बजट डेफिसिट को कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का बजट है उसके दो बड़े हिस्से हैं. एक वो जो इस वक्त एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, और एक जो हमने पास्ट एक्सपेंडिचर किया उसकी हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं. सो डेट सर्विसिंग लास्ट ईयर वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल वन. तो वो पास की एक लाइबिलिटी है, और ये मैं बिल्कुल मुफ्ता साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने डिविजिबल पूल का वो हिस्सा लेती रहे जो ले रही है तो उसमें बड़े इश्यूज हैं. लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है इसको चेंज करने की बजाय इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. सो क्या इंप्लीमेंट नहीं हो रहा? जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो ये है कि जो सूबों का हिस्सा है डिविजिबल पूल में वो सूबों को मिल रहा है. क्या नहीं हो रहा?
जो सूबों के कुछ करने के काम हैं वो अभी तक फेडरेशन में हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, आपके इलम में है, लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो गरीबों के लिए है, BISP, वो फेडरेशन से फाइनेंस हो रहा है. सो इवेंचुअली सूबों और फेडरेशन की मर्जी से, इसकी बजाय कि इसके ऊपर फेडरेशन को यूनिलैटरल एक्शन ले, सूबों और फेडरेशन को मिल बैठने की, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर ऑलरेडी मिल बैठ रही है. फाइनेंस मिनिस्टर और सूबों की फाइनेंस टीम्स ने इस पे अपना काम शुरू कर दिया है कि ये जो फेडरल इम्बैलेंस है इसको एड्रेस करने के क्या तरीके. मसलन फॉर एग्जाम्पल, there could be some arrangement जिसमें ये जो पास लाइबिलिटी है इसको सूबे और फेडरेशन शेयर कर लें, और कोई उस पे सनसेट क्लास लगा दें कि जब ये लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी. मुझे पर्सनली आई डोंट थिंक कि सूबों का जो शेयर है वो ज्यादा है, मेरी जाती ये राय नहीं है. पाकिस्तान इस सिचुएशन में जो है तो लगता है कि ज्यादा है, वरना देखिए मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हैव टू बी परफॉर्म बाय द, आपकी पुलिसिंग है, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, तो सूबों का शेयर कम करने की जरूरत नहीं. ये जो एक हमारी पास लाइबिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसे हल करने के लिए सबको मिल बैठने की जरूरत है, और टैक्स GDP रेशियो को भी ठीक करने की जरूरत है. ठीक है सर. अब ये आपके पास आऊंगा मैं. जी मैं सबके पास आप कोई बचा है माइक ले जाओ इनके पास माइक. सवाल आप मुझसे पूछिएगा, मैं इनको डायरेक्ट करूंगा. मॉडरेटर मिफ्ता साहब पहली दफा मॉडरेटर है, वरना इधर होते हैं. और जब आपने मिफ्ता साहब से सवाल करना हो तो आप मुझे पूछिएगा. मैं फिर चाह रहे हैं कि मुझसे सवाल पूछा जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इन्हीं से पूछा जाए. पूरा महफिल तो ये है. हेलो, नहीं आवाज हेलो. माइक करीब ले आगे, आवाज नहीं आ रहा. जी बात. जी क्योंकि लोग टैक्स के अंदर मौजूद हैं. इसको एड्रेस कर ले पहले. जी सर. तो क्योंकि लोग टैक्स के अंदर मौजूद हैं, आप उन्हीं को एम्प्लॉय करते रहते हैं. मिफ्ता साहब भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी आप ही की तरह बातें बड़ी प्यारी करते थे, सभी करते आए हैं. नहीं, मैं सर पिछली दफा सर प्लीज मैं इनसे बहुत अच्छी बातें करता हूं. जी मैं भी मेरे वर्ड यही थे कि आप प्यारी बातें करते थे. लास्ट टाइम आप थिंक फेस्ट पे आए, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट से बाहर है तो आसान है कहना. मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, 2.5 मिलियन रिटेलर्स हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते. एग्रीकल्चर को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सैलरी वाला बंदा जो टैक्स दे रहा है, जो दे रहा है, उसको आप इस पे कोई रैशनलाइज कर रहे हैं. भाई मैं तो वजारत कुर्बान कर दी, इस पे क्या बातें कर रहे हो लोग. बात करो. सर इसको कोई रैशनलाइज कर दें, क्योंकि आपको सिस्टम वाले बंदों को निचोड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा. आपका सवाल आ गया. आई थिंक ही अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. अब मैं आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ सर. इनके पास जाऊंगा फिर आपके पास आऊंगा. बेटा इधर मेरी बात सुनो. ये साहब के ऊपर खड़े हो जाए, आप इन साहब के ऊपर आ जाए, आप सवाल का जवाब दीजिए. ये दुकानदारों पे क्यों टैक्स नहीं कर रहे हो? इस पे कर ले इससे पहले कि आप शुरू करें, या यू वांट टू टेक इट. जी अच्छा देखिए, रिटेल सेक्टर और होलसेल सेक्टर में टैक्सेशन एक मेजर इशू है. आपके लिए में है कि हमारे पास कोई टोटल 3.6 मिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन ये भी सब के सब वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी ना कि टॉप 5% में टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, और बाकी इनमें भी सब में बहुत हाई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है. ऊपर की एक लेयर है जिसमें है. मैं आपको एक नंबर इनकरेजिंग शेयर करना चाहता हूं. पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल रिटेलर फाइलर थे वो 2 लाख थे. इस साल जो सितंबर में हमें रिटर्न आई है उसमें रिटेलर 6 लाख हुए. मैं आप बता रहा हूं ना 3.6 मिलियन. मैंने पहले आपको आउट ऑफ बताया और फिर आपको नंबर बताया. अब क्या 3.6 मिलियन को मैं फाइलर बनाना चाहता हूं? इसमें वो रिटेलर भी है. ये नंबर कहां से आया 3.6? जिस बंदे का बिजली का कमर्शियल कनेक्शन है वो हमने उसे रिटेलर समझा है. अच्छा 3.6 रफली रिटेलर और होलसेलर नहीं होंगे, उसमें कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट भी जो अदर देन रिटेलर है, वो कुछ 3 मिलियन के. इस 3 मिलियन से मेरी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जहां 90% टैक्स लायबिलिटी लाई करती है, वो पहले 6 या 7 लाख है, यानी 0.6 मिलियन है. जिन 30 लाख में से कुछ 6 लाख के या 8 लाख अगर आ जाए हमारे सिस्टम में, तो 90% टैक्स लायबिलिटी वहां लाई करती है. अब क्या उनका सिर्फ टैक्स नेट में आना काफी है? वो काफी नहीं है. टैक्स नेट में तो वो आगे हैं, वो फाइलर तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी इनकम को अंडर डिक्लेयर कर दिया है. उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इनकम हुई नहीं.
अच्छा, अब ये देखें, इनकम नहीं हुई उसका एक तरीका ये है कि आप 7 लाख लोगों का ऑडिट खोलें, उनकी डिटेल शीट्स देखें, आप अपनी डिपार्टमेंट की कैपेसिटी डेवलप करें, आप थाउजेंड्स ऑफ ऑडिटर्स को हायर करें उस काम के लिए जो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये एक तरीका है? आखिर ये लोग जो इनकम 6-8 लाख जो ये हाई एंड होलसेलर रिटेलर हैं, ये जो इनकम कमा रहे हैं, ये कहीं वो स्पेंड भी तो कर रहे हैं। क्या जो सूतर मंडी का आपका होलसेलर है वो इनकम को घर में घड़े में तो नहीं रख रहा ना, वो या तो किसी और बिजनेस में यूज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या वो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, या वो गाड़ियां खरीद रहा है। तो हम ये जो अभी लेजिस्लेशन लाए, अगर आप उससे गुजरे हो, तो बोथ ऑन सेल्स टैक्स साइड एंड ऑन इनकम टैक्स साइड सफिशिएंट मेजर्स आर बीइंग बिल्ट, जिसके जरिए ये स्पेंडिंग पॉसिबल नहीं रहेगी अनटिल अनलेस आप वापस जाके अपनी इनकम को दुरुस्त डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू राशिद भाई, यही पर रुकना है बस। तो आइए if you allow me, a question है. जी जी जी, आप पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, अच्छा, डॉन से हूँ जी, फैसल इकबाल जी फैसल साहब, कैसे हैं आप? जी, फाइन सर। ऐसा नहीं है कि जो ताजर है, होलसेलर की बात करें, वो फिजिकली रेजिस्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों कस्टम्स के लोगों पे या लाहौर में फायरिंग हुई, और ये इस तरह की आप मतलब हाउ यू गोना एनफोर्स उस लेवल पे स्ट्रीट बाजार में जाके आपके इंस्पेक्टर्स, और ये उनके लिए कोई एक थैंक यू फैसल। एक और सर, नहीं एक सवाल कीजिए सर, थैंक यू Sir, if you allow me to. नहीं एक मिनट सर, एक मिनट। टैक्स लॉ जो है ना, ये सिविल लॉ की तरह ऑपरेट करता है, ये क्रिमिनल लॉ की तरह ऑपरेट नहीं करता। बुनियादी तौर पर ये आप बात समझते हैं। हम टैक्स लाइबिलिटी को सिविल लॉ की तरह स्टेजेस में एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमारे पास एक तो ये ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल भेजेंगे और उधर से जाके बंदा उठा लेंगे और उसे कहेंगे तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया। हम उसके डिफरेंट चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट करने की कैपेसिटी है उसमें हम 3 काम कर रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जरूर समझें। हमारा एफबीआर में हम 3 बड़े काम कैपेसिटी साइड पे कर रहे हैं। इस वक्त हमारे कोई 700 ऑफिसर्स हैं जिन्हें हम यूनिट ऑफिसर कहते हैं। आप समझे, हमारा जो यूनिट ऑफ वर्क है ACDC लेवल पे लोग हैं, 17-18 के जो लोग हैं। ये जो 700 अफसर हैं, इनके पास नीचे कोई कैपेसिटी नहीं थी जिनसे ये काम लेते, और लोड ऑफ वर्क बहुत हाई था। अब वो जो लोड ऑफ वर्क बहुत हाई था, हम कोई 1600 ऑडिटर्स, प्रोफेशनल ऑडिटर्स, CAs वगैरह जिन्होंने आर्टिकल्स किए हुए हैं, वो हायर कर रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं। दूसरा हम बड़ा ये काम कर रहे हैं कि हम ऑफिसर्स का इंसेंटिव स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। ये अगर आप जरूर आपके इंटरेस्ट का है, क्योंकि ये सिविल सर्विस में जो बहुत सारी कबातें हैं, उसकी वजह ये है कि जो अच्छा काम करता है, जो बुरा काम करता है, उसमें कोई तमीज नहीं है। और ये मतलब सिर्फ एफबीआर में नहीं है, ये बाकी तमाम महकमों में। अभी हम क्या करें, हमारा जो ग्रेड 17 का अफसर इस वक्त हम कराची पोस्ट करते हैं या किसी भी जगह, उसकी जो टेक होम सैलरी है वो 95,000 रुपीज है। अच्छा, आप ये सोचें कि ना उसको हम कोई रहने की जगह देते हैं, ना उसको कोई मोबिलिटी के लिए मदद करते हैं, और उसे कहते हैं आप तुम वो जाओ एंड यू आर देयर, और तुम आप बाकी तमाम इंतजाम अपनी जाओ हशमत से करो। तो ये जाओ हशमत से जब इंतजाम होगा तो टैक्स तो सही कलेक्ट नहीं होगा ना। अभी हमने क्या किया है, फेडरल कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में उन्होंने अप्रूव किया एक मेजर इंसेंटिव पैकेज। इसमें क्या होगा, हम ऑफिसर्स को उनकी इंटेग्रिटी और उनके वर्क आउटपुट की बुनियाद पे 5 शेड्स में लेके जा रहे हैं, ABCDE, और ये हर 6 महीने बाद पीरियोडिकली रिपीट होगा। इसकी पहली एक्सरसाइज इसी महीने हो रही है, जनवरी में हो रही है, और उसमें जो A कैटेगरी में 20% आएंगे, दिस इज फोर्स रैंकिंग मेथड, 20% A में या 20% E में है। जो E है विच इज द वर्स्ट पार्ट, उसकी सैलरी में तो कोई इंक्रीज नहीं हो रही, और उसकी पोस्टिंग भी उस हिसाब से बुरी जगह होगी वगैरह वगैरह, जहां वो ज्यादा सरकार का नुकसान ना कर सके। लेकिन A कैटेगरी को रफली 4 लाख रुपया सैलरी मिलेगी। सो हम 4 गुना उसकी बढ़ा रहे हैं A कैटेगरी की, B की 3 गुना, C की। सो देयर इज अ कैस्केडिंग मॉडल। तो इसके साथ एनोनिमाइज तरीके से पीयर रेटिंग को यूज करके और एक्सपर्ट पैनल को यूज करके उनकी वर्क क्वालिटी और उनके जो इंटेग्रिटी के लेवल्स हैं उनको भी साथ डॉक्यूमेंट करें। और जब ये हो तो ये एक बड़ी मेजर तीसरा हमारा इशू ये था कि टू अर्ली। आपको यहाँ पे रोक लूँ बस, ये मेरे ख्याल से ये अच्छा हो गया जवाब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। मैं सबके पास कोशिश करके आऊंगा, तो एक्स्ट्रा टाइम भी खींचेंगे। जी सर, मैं आऊंगा आपके पास। जी, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल विजिट नहीं हूँ, मैं इस टेक्निकल जार्गन से कुछ भी मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ
यहाँ आवाम बैठी है और आप लोग जो है तकरीबन बादशाहत के साथ हैं। तो हमारा मसला ये है कि जब तक ये बादशाहत कंटेन नहीं की जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ हिस्टोरिकली कि मुगलिया सल्तनत जो थी उसका फॉल जो था वो उस शख्स के हाथों हुआ जिसने आर्किटेक्चर का पिनेकल अचीव किया। बादशाह साहब अपना ताजमहल बनाने के लिए इतने टैक्सेस लगाए कि पूरी निज़ाम सल्तनत डूब कर रह गया। मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक ये निज़ाम आपका ऐसा रहेगा जिसमें आप लोग बादशाह हैं और हम अवाम हैं, तो इसमें मुमकिन नहीं है कि हमारा मुल्क एक तो ये देख लीजिए कि मैं नॉन टेक्निकल होते हुए भी ये बता सकता हूँ कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जब तक कि बादशाह ख़त्म नहीं होगी, और बादशाह ख़त्म करना नहीं चाहता। तो एक तो ये सवाल है। सर ये बादशाह नहीं है ना, मैं बादशाह हूँ, हम सबको पता है बादशाह कौन है। देखिए, नहीं मुझे मालूम है आप बादशाह नहीं है तो बादशाह के मसाइल तो हैं। आप मुफ्ता साहब बादशाह नहीं है, बादशाह के मसाइल तो हैं, इसीलिए इतराते फिरते हैं शहर में। तो मतलब कहने मैं अपना सवाल खत्म कर लूँ। राशिद साहब से दूसरा सवाल ये है कि जब हुकूमत ने शुरू किया है कि हुकूमती ढांचा कम किया जाएगा, तो मेरा ये ख्याल है और मेरा सवाल भी आपसे ये है कि मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान में FBR को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान, लोग ज़्यादा टैक्स देंगे। ठीक है सर, आई थिंक आपका कमेंट आ गया। जी सर। जी थैंक यू मिफ्ता साहब। मैं डॉक्टर अदनान हूँ, वाइस चांसलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसमें याकूब अंगिश इज़ वर्किंग। मेरा इस वक्त टेनियर मिल गया जी आप वीसी है वहाँ पे? जी सर, आई नीड टू टॉक सर टू आप तो इधर आए ना। नहीं तो मुझे आप पहले बता दें, मैं वुड हैव कम टू यू सूनर। सो अभी एक रिसेंटली मैं क्विक क्वेश्चन करता हूँ, और भी हैं तो फिर आपसे बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये है कि पीपल जो अच्छे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, दे आर लीविंग द कंट्री, एवरीबॉडी नोज। और उसकी मेजर वजह इकोनॉमिक है, उनकी जो सैलरी के ऊपर जो हम नहीं उसको कॉम्पनसेट कर रहे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर या फिर बाहर जाके। अब रिसेंटली एक चीज़ पता चली है, रिसर्चर और एजुकेशनल के ऊपर टैक्स रिबेट था 25%। वो जो 25% है उसके ऊपर जब ये फिस्कल स्टार्ट हुआ, ये बड़ी डिबेट हुई, वो किसी हद तक कोई कन्फ्यूजन रही। अब दोबारा ये बात शुरू हो गई है कि वो रिबेट ख़त्म कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा हिट करेगा सैलरीज के ऊपर। और ये लोग जो ऑलरेडी हम जिनको रिटेन किया हुआ है, मेरा ख्याल सवाल आ गया आपका। जी सवाल ये है सर कि क्या ये रिबेट खत्म करेंगे जो टीचर्स को देते हैं? क्या सेक्टर कमांडर IMF ने आपको ये कहा है? देखिए क्या प्रिंसिपल क्या है, पहले प्रिंसिपल की बात। आई मीन सॉरी, मिशन चीफ। सो टैक्सेशन का एक बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यू हैव टू ट्रीट एवरीवन यूनिफॉर्मली। सो अगर एक इनकम रेडी वाले की है लाख रुपया है और एक प्रोफेसर की इनकम 1 लाख रुपया है, तो वो यूनिफॉर्मली ट्रीट होगी। हम करते क्या थे, उसूलन प्रोफेसर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए थी। हमने सीखा सैलरी तो ज्यादा हम नहीं देने की पोजीशन में से, हम उसे जो उसूलन देनी चाहिए वो नहीं देने की पोजीशन में, तो आपको टैक्स रिबेट में 25,000 रुपया दे देते हैं या 50,000 रुपया दे देते हैं। ये गलत तरीका है। ये आपने जो देना है उसे अपफ्रंट दें और स्टेट करें कि हमने ये दिया। ये जो रिबेट्स का कंसेप्ट है, रिमिशंस का कंसेप्ट है, ये कंसेप्चुअली गलत है कि आप फलां आदमी से जब हम लेंगे तो 10% टैक्स लेंगे, फलां से 5% लेंगे। हाँ, अगर उसका इनकम लेवल डिफरेंट है तो वो तो प्रिंसिपल दुरुस्त है, लेकिन अगर इनकम लेवल सेम है तो ही शुड हैज टू बी सब्जेक्टेड टू द सेम। इस वक्त बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। असूली तौर पर हमारा सफर उस तरफ होना चाहिए कि जहां पे ये जो डिस्टॉर्शन है, जो टैक्स सिस्टम की डिस्टॉर्शन, ये कम से कम होती जाए। अगर ये कम नहीं होंगी, अगर फर्ज किया किसी यूनिवर्सिटी के बजट में सैलरी हेड में 80 मिलियन रुपीस है, तो असूलन वो सैलरी हेड बढ़ाने की जरूरत है, इसकी बजाय कि आप टैक्सेशन का रेट कम कर दें और उससे ये समझे कि जी हम तो टोटल 80 मिलियन की। यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि वो ट्रू सैलरी क्या दे रहे हैं। सर थैंक यू। सवाल आ गया। जी बेटा।
سر ہمارے ہاں نا شبہ زادی صاحب تھے آپ سے پہلے FBR کے چیئرمین. کدھر ہے یار آواز نہیں آ رہی. وہ کھڑے ہو جاؤ. شبہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کے 3 مسئلے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ ٹیکس نہیں دیتا, ایک ایگریکلچر ٹیکس نہیں دیتا, دوسرا اسمگلنگ ہے. کیا اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایشو تو آپ کو پتہ ہے سارے, اس میں کیا ڈیپ اسٹیٹ کے رول کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ تھینک یو بیٹا. یہ مائک جو ہے نا بیٹا, یہ مائک لے کے وہ خاتون کو دے دو. ان کو دیکھیں 3 ایشوز ہیں. اسمگلنگ ہے, بالکل ایشو ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کم صوبوں کے پاس ہے, وہ نہیں کلیکٹ ہو رہا, یہ بھی ایشو ہے. سو اسمگلنگ کا ہمارا ایک لارج والیوم تھا اور اس کے اوپر تمام پوری گورنمنٹ نے بہت یکسوئی سے کام کیا ہے. اور اگر آپ نومبر دسمبر کا ڈیٹا دیکھیں POL کی امپورٹس کا, تو آپ کو ایک واضح انکریز. تو سب سے زیادہ اسمگلنگ کس چیز کی ہو رہی تھی؟ POL کی ہو رہی تھی, پیٹرولیم پروڈکٹس. پیٹرولیم پروڈکٹ, ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے. جب وہ ہوا تو آپ کا, جب اس پہ اسمگلنگ کے اوپر کام شروع ہوا تو اس سے ایک میجر چینج آئی کہ آپ کا 15 سے 20% جو فارمل امپورٹ ہے وہ بڑھ گئی. گورنمنٹ جو مجھے جہاں جہاں نظر آتا ہے, مجھے کسی جگہ گورنمنٹ کا کوئی حصہ اس بات کی فیور میں نہیں لگتا کہ وہ کوئی اسمگلنگ ہو یا اسمگلنگ نہ ہو, اسمگلنگ کو روکا جائے. تمام لوگ روکنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس میں دیکھیں ہمارا پورس بارڈر ہے, افغانستان کا بھی, ایران کا بھی. اٹس اے لارج پورس بارڈر, اور یہ اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی جغرافیکل بیریئرز نہیں ہے وہاں پہ جس کے اوپر رکے. جیسے بہت سارے ملکوں کو یہ ہوتا ہے, سمندر ہوتا ہے یا کوئی پہاڑی سلسلہ ایسا ہوتا ہے. ہمارا بارڈر بالکل ایسے ہے کہ اس میں دوسری سائڈ اور اس سائڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بہت لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, بہت محنت ہو رہی ہے. ہم دیکھیں, اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس بارڈر کے اوپر, ہمارے ٹیررزم کے باقی ایشوز ہیں. آپ اسمگلنگ کو روکنے کی مجھ سے بات کر رہے ہیں, بالکل اسمگلنگ ایشو ہے, اس کے اوپر میجر کام ہو رہا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے 100% کامیابی ہوگی, تو نہیں ہوگی. بہت ساری کمیونٹیز ہیں, ولیجز ہیں جو اکراس دا, لیکن پہلی دفعہ پاکستان کسٹمز, جس کے کچھ آفیسر مجھے نظر بھی آ رہے ہیں, ان کے اوپر ایک میجر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سو ہم ڈیجیٹل انفورسمنٹ کا ایک نیا کنسپٹ لا رہے ہیں. دیکھیں جو اسمگل گڈز ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ مارکیٹ میں بکتی ہے نا. تو اگر آپ مارکیٹ سائڈ سے اسے کنٹرول کر لیں تو پھر بھی اسمگلنگ کم ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ سب ختم کرنے سے اور اگر بارڈر سائڈ سے کر لیں تو تب بھی ختم ہو جائے گی. سو وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہم تمام لیجٹ گڈس ٹرانسپورٹ کو ای وے بل سسٹم پہ لا رہے ہیں. یہ 1-2 سال لگیں گے, اس میں بالکل لگیں گے. اور جو ایلیجٹ ٹریڈ ہے اس کے اوپر ہم بیریئرز کریٹ کر رہے ہیں مارکیٹ ٹاؤنز کی طرف جاتے ہوئے. فار ایگزامپل ابھی ایک نئی ہم نے کلیکٹریٹ اپروو کی ہے, وچ از انڈس کلیکٹریٹ. تو انڈس کے کوئی 22 بریجز ہیں, ان کو کراس کیے بغیر 80% آف مارکیٹ میں نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے اوپر ہم ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز بنانے جا رہے ہیں, وچ از اے بگ پروجیکٹ. انشاءاللہ اس کے 6 مہینے سال بعد اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. تھینک یو. جی السلام علیکم, میرا نام زنیرہ عظیم ہے. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جو ہم موبائلز وغیرہ لیتے ہیں, جو اینڈرائڈ اور ایپل کے فونز ہیں, اس میں PTA پروف ٹیکسز کیوں ہیں؟ اگر کسٹمر پے کرنے سے فیل ہے, اس کا کیا کردار ہے؟ یا تو ٹیکس کم کیے جائیں PTA پروف موبائلز کے, یا تو کسٹمر کو مجبور نہ کیا جائے ایسے اینڈرائڈ موبائل لینے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا دوبارہ بتائیں, ایشو کیا آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں آ رہا, لیکن عوام کو آ رہا جو ایپل فون خریدنے کی خواہش مند ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ انفلیشن, وہ PTA والے اتنے ٹیکس کیوں لیتے ہیں, یہ پوچھ رہی ہو نا. PTA والے تو ٹیکس تو نہیں لیتے ہوں گے نا, PTA والے تو اپنی کو فی لیتے ہوں گے نا. PTA ہماری کلیکشن ایجنسی ضرور ہوگی, PTA لیوی لیتی ہے نا, جو وہ اپنی لیوی وغیرہ لیتے ہوں گے. وہ تو دیکھیں نا, مطلب بہت ضرورت کی تھوڑا ایپل کے علاوہ کام چلا لیں. سیمسنگ ہے ان کے پاس, سیمسنگ ہے, چاہیے. جی جی چل بول رہے بیٹا, آپ اونچے آواز سے بولو. چلو بولو. نہیں 1 سیکنڈ, آپ کو مائک بھجواتے, مائک بھجوائیں. بیٹا 1 منٹ, مائک آ رہا ہے. مائک دیکھیں, مائک. یہ دیکھو FBR چیئرمین بیٹھے ہیں, ہم تحز وہ کیا تہذیب چل رہے ہیں. میں نے بھی بڑی ہمت دکھا کے سوالات پوچھے, ورنہ چیئرمین FBR جو ہے نا, یہ جو سر نے فرمایا یہ بادشاہ کے برابر ہوتے ہیں, یہ بادشاہ کے مصائب نہیں ہیں. جی سر, ملازم لوگ ہیں, ملازم. میں ایک CA ہوں سر, اور میں دیکھتا ہوں آپ نے بارہا یہ بات کی کہ ہمارے پاس جو ٹیکس فائلرز ہیں وہ بہت کم ہیں. میں آپ سے بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ٹیکس پیئرز تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں.
बिकॉज 193 मिलियन नेटवर्क्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं जो भी एक्टिव हैं, और उन सब से हम टैक्स, एडवांस टैक्स कलेक्ट करते हैं. मेरा छोटा भाई है 5000 के लिए मुझे कॉलिंग करता है, लेकिन जब वो बैलेंस करवाता है तो एडवांस टैक्स दे रहा है. तो आप इस चीज से एग्री करेंगे कि टैक्स पेयर हमारे पास ज्यादा ही नहीं, टैक्स फाइलर्स कम होंगे? मैं आपकी बात समझ गया, बैठे थैंक यू. देखिए, ये बात दोस्त कह रहे हैं कि हम सेल्स टैक्स की मद में और एडवांस इनकम टैक्स की मद में उन लोगों से भी टैक्स ले रहे हैं. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. वो पिछले का अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. हम ये जो इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसमें से मैंने आपको बताया था ना कि मुख्तलिफ जो टॉप 1% है वो 500 बिलियन देते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो कोई नेक्स्ट 4% जो है वो कोई 300 बिलियन के करीब देते हैं. तो ये हमारा एक गैप है जो कोई 700 बिलियन का पिछले साल में था. मजे की बात है कि कुछ 350 बिलियन ऐसे लोग टैक्स देते हैं एडवांस इनकम टैक्स की शक्ल में जो अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं करते. इसका क्या मतलब है? ये बहुत हाई रेशियो है. यानी कि उस बंदे ने इनकम टैक्स दे दिया हुआ है और वो क्लेम नहीं कर रहा. वो क्लेम क्यों नहीं कर रहा? कि जिस दिन वो क्लेम करने जाएगा उसे अपनी टैक्स रिटर्न में बाकी चीजें भी बयान करनी पड़ेंगी. आपकी जो कैश इकोनॉमी है वो रफली 25% है इस वक्त, आपके इलम में है, जो कंपेरेबल कंट्रीज में 14-15% से ज्यादा नहीं है. तो ये जो पूरे का पूरा पर्ची के ऊपर निजाम चल रहा है, जिसके खिलाफ अभी हम लेजिस्लेशन लेके आए, ये जब तक कम नहीं होगी, आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे वो टैक्सेस हम ले रहे हैं जो हमारे टैक्स फाइलर नहीं है उनसे ले रहे हैं. ये आप बात दुरुस्त है. सर मेरा क्वेश्चन आपसे है. सर अभी आपने कहा कि आवाम बहुत ज्यादा टैक्स देती है और उसको बदले में क्या मिलता है. सर जैसे आप पब्लिक स्कूल्स देखें, कॉलेजेस, मुझे नजर नहीं आ लाइट की वजह से. अच्छा जी. पब्लिक स्कूल्स की एजुकेशन चेक करें तो सर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है. अगर हम देखें कि हमें टैक्स के पैसे से इन रिटर्न मिलता क्या है आवाम को. पब्लिक हॉस्पिटल्स देखें तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि किस किस्म का बर्ताव किया जाता है आम आदमी के साथ. और सर आप चूंकि गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, आप ये FBR कहता है, लोगों से डिमांड की जाती है आम आदमी से कि वो टैक्स पे करे, फाइलर बने. सर मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी जिसको बदले में कुछ नहीं मिलता, वो हर इदारे का, जो पब्लिक इदारे हैं उनकी सबकी सैलरीज, आप जजेस की चेक करें, डॉक्टर्स की, टीचर्स की, आपकी सारी जिंदगी गुजर जाती है अदालतों के चक्कर लगाते. जो जज आपकी टैक्स के पैसे से सैलरी लेता है वो आपको इंसाफ नहीं देता. डॉक्टर्स आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते. टीचर्स, आप गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट्स को देखें, वो पास आउट हो जाते हैं, प्रॉपर वो कुछ सीख ही नहीं पाते जब वो पास आउट होते हैं. तो सर ऐसा क्या है कि जब गवर्नमेंट या FBR एक आम आदमी से डिमांड करती है कि वो टैक्स दे, तो ऐसी क्या चीज है कि आप सवाल तुम्हारा समझ गया हूँ. सवाल तुम्हारा 2 मिनट पहले समझ गया. बेटा बैठ, माइक जो है ना बेटा, अब तुम ले लो माइक, आप बैठे, मैं जवाब दे देता हूँ. मैं अपनी दानिश से जवाब देता हूँ कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है. देखो, मैं 15 साल से ज्यादा से सियासत में हूँ और 2 मरतबा मैं 5-5 महीनों के लिए वजीर खजाना भी रहा हूँ, और पहली मरतबा वजीर खजाना 5 महीने रहने के बाद 5 महीने जेल में भी रहा हूँ. तो बिल्कुल ये जो सर ने जो कहा ना, मुझे बिल्कुल एहसास है कि बादशाह कौन है. ठीक है, और अभी अगली वाली बारी है जेल में जाने की, जब भी, खैर कोई जल्दी नहीं है. देखो, पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी जो है ना वो फेल हो चुका है. झूठ, सच्ची बात ये है. ठीक है, ये बाकी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब लिपस्टिक ऑन अ पेग है. इट्स स्टिल अ गॉडडैम पेग. ठीक है, आप जितनी भी लिपस्टिक लगा लें, हमारा निज़ाम हुक्मरानी फेल हो गया. यही मुल्क 1990 में साउथ एशिया में सबसे अमीर होता था. यही मुल्क 18 पॉइंट्स आगे था बांग्लादेश से. आज 30 नंबर पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. यही मुल्क जो है वो इंडिया से आगे था 8 या 10, आज 12 पॉइंट पीछे है. सो हमारा निज़ाम हुक्मरानी फेल हो गया है. हम ये हुकूमत जो है ना, मतलब ये, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस गवर्नमेंट, हमारी गवर्नेंस जो है ना, उसको अगर आप एक पापड़ देना कि तोड़ो तो वो नहीं तोड़ सकेगी, वो कोई काम नहीं कर सकती. ये जो सूबे में बेटा, आप मुझे जवाब दे, ना बीच में नहीं बोलो. सियासतदान हूं ना मैं, भाषण देने का शौक है. जिस सूबे में आप रहती है ना, दिस इज द बेस्ट गवर्न्ड प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय फार. ठीक है, आई कम फ्रॉम सिंध, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पीपल हु लिव इन KP, व्हाटएवर, आई मीन वी ऑल नो द रियलिटी. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इधर भी गवर्नेंस डजंट वर्क. एक तो आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स ही नहीं है. अब पंजाब ने तो एकदम जीरो कर दिया, पूरे का पूरा पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर ने खींच लिया अपने हाथ में.
آپ کے پاس حکمرانی ختم ہو گئی ہے, آپ کو اپنا کنٹری کا ڈائریکشن چینج کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ کے ملک میں 78% 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہو نا, 78% بچہ, so you really failed. ٹھیک ہے, جب 40% بچہ اسٹنٹڈ ہو نا, you really failed. So everything else is just lipstick on a pig really. People like Rashid work really hard, more importantly work intelligently. یہ بہتری لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کسٹمز کے اندر رشوتیں ختم کر دی ہیں, اسپیڈ منی اور یہ وہ بہت ساری انتظام کر کے. And he is to be congratulated. ٹھیک ہے, یہ سمجھتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے 1% لوگوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, عام دکانداروں کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر رہے. لیکن there is a limit to what he can do or anybody can do unless we change the system. یہ میرا جواب آ گیا تم کو بیٹا, اب اس بچے کا سوال ہے. میں آپ کو نا ایک ایسے مثال دیتا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا, آپ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا, تو آپ کو دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں بنیادی بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری انکریمنٹل چینجز ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو ہم نے ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ابھی کی. کراچی میں آپ کی رفلی 2000 گڈز ڈکلیریشن ڈیلی آتی. ہماری ایوریج جی ڈی کلیئرنس ٹائم 106 گھنٹے. ابھی جو لاسٹ ویک ہے, جو یہ فرسٹ 8 days آف دس منتھ ہے, اس میں وہ 19 گھنٹے ہو گیا ہے. اچھا ایک اور مزے کی آپ کو ریونیو میں فرق آیا آپ کو؟ سر نہیں, ریونیو میں فرق نہیں پڑا, ریونیو رفلی سیم ہے. میں 2 چیزیں اور بتاتا ہوں. تو اپریزر کیا کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو مجھے مزید چاہیے, تو اسے ہم ڈاکومنٹ کال ریکویسٹ کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ کہتا تھا کہ مجھے شک ہے کہ اس کے کنٹینر میں کچھ اور ہے اور لکھا اس نے کچھ اور ہے, تو اسے ایگزامینیشن ریکویسٹ کہتے ہیں. یہ دونوں ریکویسٹیں یہ 80 سے 85% نیچے گر گئی. جہاں پہلے 100 کو وہ کال کر رہا تھا ایگزامینیشن کے لیے یا ڈاکومنٹس کال کے لیے, وہ 15 رہ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب اس کے جو کلوژن تھا بٹوین دا اپریزر اینڈ دا امپورٹر اور دا کلیئرنگ ایجنٹ, وہ کلوژن ٹوٹ گیا. ان کے پاس آپس میں کوآرڈینیٹ کرنے کا کوئی میتھڈ نہیں رہا. اب اس میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی. ایک ہال ہے جس کو سینیٹائز کرنا ہے, ان کو اندر بٹھانا ہے. آپ بھلے اس کو انفارملی بھی اپنے لوگوں سے بھی چیک کریں. دس از کائنڈ آف
thing that we need, और ये 80 to 85% of import है. And will you do this in all of Pakistan? सर ये सर नहीं, अभी 4 कलेक्ट्रेट में है कराची की, कराची की सारी पोर्ट्स पे हो गया है सर. इसमें सर मैं आपको जो असल बात बताना चाहता हूँ, this deals with 80 to 85% of all imports in this two country, और speed money at the level of assessment as we speak is 0. ओके ठीक है, थैंक यू. आखिरी सवाल है जी बेटा. सर आपने बात की कि अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ख़त्म करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो उससे बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है. यहाँ कुछ देर पहले मलिक अहमद खान आए थे, उनके साथ आप बाइट प्रोटोकॉल देखेंगे कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल था. किस तरह आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हो. दूसरा सर ये तो अपने अंदर नेपोटिज्म नहीं है कि डीएमजी का बंदा टैक्सेशन को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है सर आखिरी सवाल है मेरा. तो इन्होंने 2 सवाल किए हैं. एक तो इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का प्रोटोकॉल है बाहर पे, वो मिनिस्टर्स का सरकार, स्पीकर साहब आए थे. स्पीकर साहब का देखें, स्पीकर एक कस्टोडियन है हाउस के, मतलब है मुझे नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल था क्या नहीं था, बट दैट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस सेशन. आप उस सेशन में नहीं थे जब स्पीकर साहब आए, क्वेश्चन नहीं पूछने. आप देखें इसमें तो अच्छा सर इनके सवाल ले रहे थे. 1 मिनट जी, आखिरी सवाल ले रहे हो. इंटरनेट बंद करने का इसका क्या ताल्लुक है? मैं सवाल नहीं समझा. आप कह रहे हैं कि किसके ऊपर टैक्स है? उस पर कितना टैक्स है? जो नॉन फाइलर है वो 25% और जो सॉरी नॉन फाइलर 30% और फाइलर 25%. तो ये तो अच्छी बात है ना. नहीं ये कौन कर रही है? स्टूडेंट है. ये बात मैं समझ गया आपकी. He is saying that the tax rate should be lower on e-commerce when people get money from outside, right? आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई तजारत कंप्यूटर पे बैठ कर करे तो उसका टैक्स रेट कम होना चाहिए, दुकान पे बैठ के करे तो ज्यादा होना चाहिए. जो बात से पैसे आ रहे जल्दी से. अच्छा मेरा ये ख्याल है ये अलग से मैं समझा नहीं हूँ, इस बाद में पूछ लेंगे आपसे बाद में बात. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, मिर्ता साहब मैं आप सर खवातीन हजरात का शुक्रिया कहता हूँ. ये चाहते थिंक फेस्ट देखिए अब बंद करा देना सर. मिर्ता साहब एक लास्ट क्वेश्चन. नहीं भाई बस कर ले भाई. वो थैंक यू.